Hello students, welcome to your online class, and in today's session we will study about brain. So as you all know, this chapter is all about nervous system or nervous tissue. So first of all, let's see that the nervous tissue or nervous system consists further of two parts. So these two parts are central nervous system and peripheral nervous system. This is peripheral nervous system. Central nervous system further consists of brain and spinal cord, as we have already studied. And peripheral nervous system consists of all the nerves that originate either from brain or from spinal cord. So this is the outline of the nervous system that we have in our body. So first of all, we will study about how brain and spinal cord is protected. So here, this is the, you can say, the rough structure of the brain. Okay, so if this is the brain, it is protected by our head. This brain is present inside our head and is present inside a tough bony covering, and this tough bony covering is known as cranium. It is also you can say a bony box. So suppose this is cranium which protects our brain. The second protection that our brain have is this brain is covered by some layers. So suppose these are the layers of the brain. So three such layers are present and these layers are known as meninges. And between these layers we have a fluid. यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक fluid present होता है. This fluid is known as cerebrospinal fluid, or in short we call it as CSF, cerebrospinal fluid. Now what is the function of this cerebrospinal fluid? It acts as a shock absorber. जब भी हमारा ब्रेन किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा तो क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स, तो क्या होगा, हिट होगा तो कुछ ना कुछ ब्रेन टिश्यूज विल गेट डैमेज. सो टू प्रिवेंट दिस डैमेज वी हैव दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ किसी लिक्विड से सराउंडेड है तो अगर हिट होगी तो उसको उतना नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर्ड इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड. So this cerebrospinal fluid acts as a shock absorber and thus protects our brain. Now we have spinal cord. Now you all know that we have a backbone present which is also called as vertebral column. तो जो हमारी backbone है या जो हमारा vertebral column है, this protects our spinal cord. ये हमारे spinal cord को क्या करता है, protect करता है. So this is all about the protection of brain as well as spinal cord. Now we will study about the parts of the brain. So the brain is majorly divided into three parts. The one is forebrain, midbrain and hindbrain. The first part, forebrain, it is the largest portion. That means out of forebrain, midbrain and hindbrain, the forebrain covers most of the portion of our brain. Then we have midbrain and hindbrain. These three parts of the brain are further divided. You can say forebrain have various parts. The first one is cerebrum, the second is olfactory lobes, and the third is diencephalon. This diencephalon is further divided into thalamus and hypothalamus. Midbrain connects forebrain and hindbrain, and this hindbrain is also divided into three parts: cerebellum, pons
and the third is medulla oblongata. Now what we have to do is we have to study the function of each and every part in detail. So first of all we will start with cerebrum. So as I told you that out of forebrain, midbrain and hindbrain, forebrain is the largest one. This is the largest part of the brain, and forebrain is further divided into three parts: cerebrum, olfactory lobes and diencephalon. So out of these three, cerebrum forms the major portion of the brain, means it covers most of the portion. Now we will study about cerebrum. So our head, this is our head and this portion is cerebrum. This is divided into the right half and the left half. So we can draw the diagram like this. These are the two parts of the brain. This is right half and this is left half. So these two parts are known as cerebral hemisphere, and it is generally said that the right part of your brain controls the left part of your body and the left part of your brain controls the right side of the body. So these two parts are known as cerebral hemisphere. Now this right and left part of your brain is connected by a nerves. यहाँ पर nerves present होती हैं and these nerves are known as corpus callosum. क्योंकि अगर आपके दो ब्रेन के पार्ट्स हैं तो ऑल दो पार्ट्स हैं वो अलग अलग तो प्रेजेंट नहीं होंगे, देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन दैट. वो कनेक्शन किसके होगा? नर्व्स के थ्रू होगा. सो दिस ट्रैक्ट ऑफ नर्व विच कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. आफ्टर दैट इन योर ब्रेन, अगर आपने ब्रेन का डायग्राम बुक में या कहीं और ब्रेन का मॉडल देखा होगा तो आपने देखे होंगे कि ब्रेन के ऊपर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम फोल्ड्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से कुछ इस तरह से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में. तो ये जो फोल्ड्स हैं देखो, एक कुछ एलिवेटेड पोर्शन है और कुछ ऐसे डाउनवर्ड पोर्शन है. तो ये जो एलिवेटेड पोर्शन है आपके ब्रेन में इन फोल्ड्स का, इसको हम कहते हैं गायरी, और ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है इसे हम कहते हैं सुल्काए और यू कैन से सुलसी. आप कैसे भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हो. अब ये जो गायरी और सुलसी है, दीज आर एक्चुअली द फोल्ड्स प्रेजेंट इन आर ब्रेन. अब आपको पता है कि जहाँ पर भी फोल्ड होते हैं वो बेसिकली क्यों होते हैं? टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया. तो इन फोल्ड्स का क्या काम है? टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स कंसनट्रेटेड हैं. तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपके ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड्स हैं, मीन्स ज़्यादा सुलसी और गहरी हैं, देन यू विल बी मोर इंटेलिजेंट, because these folds actually increase the surface area for the presence of different neurons and for the functioning of the brain. अब इतना आपको समझ में आ गया. अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमने करना है कि जो सेरिब्रम है ये तो हमने कर लिया कि इसमें ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये इसके पार्ट्स होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सेरिब्रम? तो सेरिब्रम इज़ द मेन थिंकिंग पोर्शन ऑफ योर ब्रेन. तो इसका पहला क्या काम है? थिंकिंग. यानी आप जब भी सोचते हो, कोई काम करते हो, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो वो आप कौन से पार्ट से करते हो? यू डू इट बाय योर फोर ब्रेन. आपकी मेमोरी भी कहाँ स्टोर होती है? फोर ब्रेन में स्टोर होती है. अब ये काम कैसे होता है? बिकॉज योर ब्रेन हैज़ थ्री मेजर पार्ट्स. ये जो सेरिब्रम है इसमें एक पार्ट होगा आपका सेंसरी एरिया, एक होगा आपका मोटर एरिया और इसके बीच में होगा आपका एसोसिएशन एरिया. ये आपके तीन पार्ट हो गए. अब आपको पता है हमारा ब्रेन किसकी तरह है? एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है. तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? पहले इनपुट आता है, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट जनरेट होता है. तो इनपुट हमारा कौन से एरिया में आएगा? सेंसरी एरिया. सो दिस इज़ द एरिया विच टेक द इनपुट फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन. इसका नाम सेंसरी एरिया भी क्यों है? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से इनपुट ले रहा है. प्रोसेसिंग और मेमोरी सारी कहाँ पर है? एसोसिएशन एरिया. हमारे ब्रेन में जो एसोसिएशन एरिया होते हैं यहाँ पर हमारी सारी मेमोरी स्टोर होती है. जब भी हमें कोई काम करना होता है या डिसीजन मेकिंग करना होता है तो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व्ड. और उसके बाद हमने क्या आउटपुट है हमारा, क्या रिस्पॉन्स है हमारा, वो हमारा किससे जनरेट होगा? ये जनरेट होगा हमारा मोटर एरिया से.
So this is all about the function of cerebrum, which is the most important part of the brain. और भी parts equally important, but this is the major part of our brain. अब हम करते हैं the second part of our forebrain, that is olfactory lobes. तो अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने इससे पहले जब रिसेप्टर्स की बात की थी तो हमने बात की थी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे रिलेटेड होते हैं? जो सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं. तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या हो गया? हमारा ब्रेन का वो पोर्शन जो स्मेल वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको प्रोसेस कर रहा है. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल. नाउ ये जो आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स है और ये जो डायनसेफ्लॉन और थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें दिस पोर्शन इज़ नॉट गिवन, बट आई थिंक इफ़ यू आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन तो आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि ब्रेन क्या है और इसके पार्ट्स क्या हैं और उनके फंक्शन क्या है. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस वीडियो. सो द थर्ड पोर्शन इज डायनसेफ्लॉन. अब डायनसेफ्लॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. तो थैलेमस का फंक्शन क्या होता है? ये भी क्या करता है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ही रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है. तो इसका फंक्शन तो वही सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसको प्रोसेस करेगा एंड देन आउटपुट विल बी जनरेटेड. दिस हाइपोथैलेमस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर. ये आप जब हमने किया था कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और एक हार्मोनल सिस्टम है जिसे हम कह रहे हैं एंडोक्राइन. सो दिस हैज़ मोर फंक्शन इन दैट एंडोक्राइन सिस्टम. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लिंक्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच लिंक्स यू कैन से नर्वस सिस्टम विथ आर एंडोक्राइन सिस्टम. और ये कैसे लिंक करता है, कैसे कंट्रोल करता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे डिटेल में. सो द फंक्शन ऑफ दिस हाइपोथैलेमस इट लिंक्स आर नर्वस सिस्टम विथ आर एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो अभी हम इतना कर लेते हैं. दिस इज ऑल अबाउट फोर ब्रेन. अब हम करेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. उसके साथ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो हमने इससे पहले थोड़ा सा ऐसे रफ डायग्राम बनाया था. पहले हमने ये पोर्शन बना लिया, फिर हम ऐसे बनाया था हमने ये, इसके ऊपर हमने एक और लेयर बना ली. यहाँ पर हमारे पास होता है सेरिबेलम. ये जो पोर्शन मैं बना रही हूँ आपका, दिस इज़ एक्चुअली द मिड ब्रेन. अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज सेरेब्रम. तो यहाँ सबसे पहले बाहर क्या है? दिस इज क्रेनियम. क्रेनियम के बाद ये आपका मिड ब्रेन है. दिस इज योर मिड ब्रेन. इसके बाद आपने यहाँ पर ऐसे बनाने और इसके ऊपर आपने ऐसे करके यहाँ पर एक फोल्ड ऐसे बनेगा, एक फोल्ड ऐसे बनेगा. उसके बाद यहाँ से ये सेरिबेलम के लिए आप जगह छोड़ दोगे और ये ऐसे आगे जॉइन हो जाएगा. यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे, देन एक दो फोल्ड्स बनाओगे ऐसे ऐसे, एंड देन यू विल मेक इट लाइक दिस. अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, ये जो हमने सेरिबेलम के लिए जगह छोड़ी है ये बना लेते हैं. तो ये आप ट्री की तरह एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है. फिर आपने इसको ऐसे बना लेना है. फिर ये इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक और हम छोटी सी कवरिंग बना लेंगे, एंड देन वी विल मेक इट लाइक दिस. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द hind brain, cerebellum. This is pons and medulla oblongata.
दिस इज सेरिब्रम विच इज़ द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। ये मिड ब्रेन है, दिस इज़ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस भी किसका पार्ट है? दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। और यहाँ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। So this is all your hindbrain. This is your midbrain and ये जो cerebrum है और ये जो hypothalamus है, this is your forebrain। और ये आगे फाइदर स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, जिसके साथ ये ज्वाइन कर जाता है, जिसे हम यहाँ पर ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। अब एक और चीज़, जब आप इस तरह, ये तो आउटलाइन स्ट्रक्चर हो गया आपका ब्रेन का, पर जब आप ब्रेन का आउटलाइन स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड है ना, और क्या है, यहाँ पर फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये अब हमने क्या करने हैं, फोल्ड्स ड्रॉ करने हैं। सो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हो। ये इस तरह से आपने क्या बना लिए, फोल्ड्स बना लिए। सो दीज आर द फोल्ड्स, जिसे हमने सुलसी और गैरी कहा था। तो दिस इज़ द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इसके बाहर अगर आप थोड़ा सा नीट वे में एक और कवरिंग बना सकते हो, जिसे आप मेनिंजेस या क्रेनियम शो कर सकते हो। जो सबसे बाहर आप कवरिंग बनाओगे वो आपका क्रेनियम होगा, उसके अंदर जो आप लेयर्स बनाओगे वो मेनिंजेस की लेयर होगी। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो हमने फोर ब्रेन का डायग्राम भी कर लिया। डायग्राम में ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब हम करते हैं मिड ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन व्हाट? फोर ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री फंक्शंस। बट जो हमारा मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ये मेजरली इन्वॉल्व है आपका किस में? इनवॉलेंट्री फंक्शंस में। इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम डूइंग इट विथ माई विल। बट अगर हम फूड स्वेलो कर रहे हैं, अगर हमारा क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेज़ लाइट आती है तो हमारा जो आइज़ का प्यूपिल होता है वो एकदम से कंट्रैक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। सो दीज आर द एक्शंस विच वी डू नॉट परफॉर्म विथ आवर विल, बट ये फंक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं। सो दीज आर इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए हमारा मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व होता है। सो मिड ब्रेन का मैंने आपको पहला बताया, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। यहाँ हमारा फोर ब्रेन था, तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम क्या ऑन कर रहा है? मिड ब्रेन। इसका दूसरा फंक्शन है इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो ये क्या करेगा? हमारी ऑडिटरी जो टर्म है इज रिलेटेड टू द साउंड, यानी जो हम सुन रहे हैं, और साइट यानी विजुअल, इन एक्शंस को क्या करता है? प्रोसेस करता है। इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को प्रोसेस करेगा। किस किस को? ऑडिटरी और साइट इम्पल्सेस को। ऑडिटरी एंड साइट इम्पल्सेस। तो पहला आप मिड ब्रेन के बारे में लिखोगे, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन, एंड द सेकेंड यू विल राइट इट डील्स विथ ऑडिटरी एंड साइट इम्पल्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन। अब हम करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में, विच इज़ डिवाइडेड इंटू सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सेरिबेलम। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सेरिबेलम। ये पोर्शन है आपका सेरिबेलम का, एंड दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट डील्स विथ बैलेंस एंड पोस्चर। ये किससे डील करता है? बैलेंस एंड पोस्चर। अब आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी है इन विच बैलेंस इज नीडेड? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डांसिंग, इफ़ यू आर रनिंग, इफ़ यू आर वॉकिंग, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू बैलेंस योर बॉडी। तो जहाँ पर भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है या आपको अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमारा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? सेरिबेलम इज इन्वॉल्व। जो पॉन्स है, दिस इज डील्स विद द ब्रीदिंग एक्टिविटी। इसका फंक्शन है, ये ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम आ जाते हैं मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो ये जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है, एक तो इसमें यहाँ पर भी ब्रीदिंग कंट्रोल हो रही है, और यहाँ पर भी मेडुला में भी एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है विच कंट्रोल आर रेस्पिरेशन।
इसके अलावा दिस ऑल्सो डील्स विथ, ये जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है ये हमारा स्वेलोइंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सो ये सारी एक्टिविटीज़ भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और आप ये देखो कि ये जो सारे फंक्शन है ये एक तरह के इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया। सो ऑल दीज फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिंगाटा ऑफ योर बॉडी। अब ये सारा कुछ था कि अबाउट द ब्रेन और उसका जो फंक्शन है डिफरेंट पार्ट्स का। अब ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर ली और न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज दी। तो न्यूरॉन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक आ गई। तो सपोज दिस इज़ द इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पर हम थोड़ा सा और करेंगे इसे। तो इफेक्टर ऑर्गन में यहाँ पर क्या आया? न्यूरॉन आया। तो ये जो पोर्शन है विच कनेक्ट्स द न्यूरॉन एंड द इफेक्टर ऑर्गन, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे ही सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा तो ये जो हमारी मसल्स हैं ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी हमने ये करना है। तो ये जो हमारी मसल्स हैं दिस इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन्स का क्या हो सकता है? प्रोटीन्स का शेप चेंज हो सकता है। तो क्या होगा? इस प्रोटीन का शेप चेंज होगा। शेप चेंज होने की वजह से शेप के साथ साथ इसके साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक बार ये जो प्रोटीन्स हैं या मसल्स हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड देन इट विल रिलैक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है दिस कॉजेज मूवमेंट। एक बार रिवाइज करते हैं। ये क्या हुआ? हमारे ब्रेन ने मैसेज भेजा। मैसेज किसके थ्रू भेजा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा। ये न्यूरॉन मैसेज लेकर आया, कहाँ पर लेकर आया? इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ये जो जंक्शन है जहाँ पर न्यूरॉन हमारी मसल्स को कनेक्ट कर रहा है इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स यहाँ पर पहुँचेगी तो मसल्स बनी होती हैं प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन्स का शेप एंड साइज चेंज होगा। तो वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगी देन रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तो उससे क्या होगी? मूवमेंट होगी। So this is students all about the function of the brain and how it causes movement in our body, how the brain tissue is protected. That's all for this video. Thank you and have a nice day.